اسلام اجتماعی فیصلوں میں بھی عدل کو نہیں بھولتا۔ تقوی صرف عبادات میں نہیں، معاہدات میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام انصاف کو جذبات، انتقام اور اجتماعی نفرت سے بلند رکھتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ سخت ترین احکامات کے بعد بھی توبہ کا آپشن کھلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ توبہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے، عملی زندگی میں مثبت تبدیلی کا نام بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیات 4 سے 7 ہمیں سکھاتی ہیں کہ اسلام کی تلوار سے پہلے اس کا عدل آتا ہے اور عدل سے پہلے اس کی دعوت آتی ہے۔ طاقت آنے کے بعد انصاف کرنا کمزوری کے وقت انصاف کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کی پہلی 3 آیات جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھی، یہ صرف اعلان برات نہیں ہے بلکہ اعلان فیصلہ ہے۔ برسوں کی دعوت، مہلت، صبر، ہجرت، جہاد اور اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان میں آخری حد فاصل قائم کر دیے۔ بدر اللہ کے عذاب کے فیصلے کی پہلی جھلک تھی قریشی مکہ پر، جبکہ سورہ توبہ میں وہی فیصلہ پورے جزیرت العرب کی سطح پر نافذ ہوا اور مکہ والوں کو عذاب کی فائنل ایپیسوڈ بھی دکھا دی گئی۔ اللہ کی عدالت سے پہلے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اعلان بھی ہوا، مہلت بھی دی گئی، توبہ کی دعوت بھی دی گئی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ توبہ کا دروازہ آخری لمحے تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ کا مقصد لوگوں کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ ہدایت دینا ہے۔ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ جو قوم کل بدر میں مغلوب ہوئی تھی، آج بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ حالات بدل سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نہیں بدل سکتی۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدر کے میدان میں دکھایا اور سورۃ توبہ میں اس فیصلے کو پوری امت اور پوری دنیا کے سامنے سنا دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ کی اگلی آیات 4 سے لے کر 7 تک کی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ آیت نمبر 4 سے آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ۔ إلا الذين، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم، پھر، لم نہیں، ینقصوکم، انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن، کچھ بھی، ولم، اور نہ ہی، یظاہروا علیکم، انہوں نے تمہارے خلاف پشت پناہی کی، یعنی کسی دشمن کی، احدن، کسی ایک کی بھی، تو تم کیا کرو، فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کی طرف ان کے عہد کو پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے یا متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ اعلان برات ہے، مہلت ہے، اعلان عام ایک وعید کا، مگر توبہ کا دروازہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا، یعنی وعید کے درمیان میں امید بھی جگائی گئی۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ ان مشرکوں کے بارے میں ہے جو اوپر والے اعلان سے مستثنا ہے، وہ جن کے لیے اعلان برات ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اب آیت نمبر 4 میں ایک استثناء، یا آپ یوں کہیے کہ ایک ایکسیپشن آ رہا ہے ان کے لیے، یعنی ان سے اعلان برات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے جب عہد کیے تو وہ اپنے عہد پر قائم رہے، نہ خود معاہدے کی خلاف ورزی کی اور نہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کی۔ تو ان کے معاہدات مدت کی تکمیل تک پورے کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، ان سے دوبارہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے کسی اور گروہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، کیونکہ جو معاہدے ان مشرکین سے کیے گئے تھے وہ دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت کی مصلحت کے تحت کیے گئے تھے، اور ان سے ہمیشہ کا نباہ مقصود نہیں تھا اس وقت۔ تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ متقین کو پسند کرتا ہے، اور یہاں جو اجتماعی جو تقوی ہے وہ اجتماعی لیول کا تقوی ہے، جو مراد ہے کہ مسلمان ایک امت کی حیثیت سے اگر کوئی معاہدہ یا معاملہ کرے تو پھر اس پر قائم رہیں اور خلاف ورزی سے بچیں۔ یہ وہ ایک لب لباب ہے اس آیت کا، جو کہ ابھی ہم نے پڑھی۔ اب آپ اس میں کچھ لیسنز اگر ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پہلا لیسن اس میں یہ نظر آتا ہے کہ عہد کی غیر مشروط پاسداری کرنی ہے۔ یہ ہمارے دین کی ایک بہت بڑی اخلاقی ویلیو ہے کہ ایفائے عہد کیا جائے بغیر یہ دیکھے کہ سامنے والا فریق میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے۔ معاہدہ ہو گیا ہے،
अगर वो अपने वादे पे कायम है तो हमें भी अपना वादा पूरा करना होगा। दूसरा पॉइंट इसमें से ये निकलता है कि दुश्मनी में भी इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी। यानी पहली आयत में मुशरिकीन से बेजारी और जंग का ऐलान है, लेकिन आयत नंबर 4 एक एक्सेप्शन पैदा करती है। और इस एक्सेप्शन में हमारे लिए क्या सबक निकल रहा है कि सबको एक लाठी से नहीं हाँकना। जो लोग अमन पसंद हैं, जो जो गद्दारी नहीं कर रहे, जिन्होंने दुश्मनी नहीं की मुसलमानों के साथ, उनके साथ दुश्मनों वाला सलूक करना नाइंसाफी होगी। फिर देखिए कि इस्लाम जज्बाती फैसलों के बजाय उसूलों पर चलने के ऊपर जोर देता है। और उसूल क्या है? मेन उसूल क्या है कि इंसाफ का साथ दो, इंसाफ के साथ खड़े रहो। एक सबक ये भी निकलता है जो कि एक फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल है हमारे दीन का, कि किसी गैर मुस्लिम कौम से अगर मुआहदा किया है तो फिर अंदर अंदर उस कौम की मुखालिफत करना और साजिशें करना, ये बदतरीन खयानत है। तो इस्लामी रियासत के कौलो फेल में तजाद नहीं हो सकता। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को भी तकवा से लिंक किया। आखिर में कहा है ना अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला मुत्तकीन को पसंद करता है या मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। ये यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी तकवा को लेकर आए हैं। ये वही तकवा है जो अनफाल की पहली आयत में ही सिखा सिखा दिया गया था, मगर वो आपसी ताल्लुकात के हवाले से था। और उस वक्त हमने ये भी देखा कि मुसलमान अपनी क्योंकि सर्वाइवल की एक जिद्दोजहद कर रहे थे कि आपस के ताल्लुकात ठीक रखो, और उसमें तकवा के ऊपर जोर दिया गया था। यहाँ पे फॉरेन रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आ रही है, यानी तकवा का स्कोप भी वसी हो गया है और ताल्लुकात का भी। यूं समझिए कि अनफाल में घर के अंदर के ताल्लुकात में तकवा की तरबियत थी। क्यों? ताकि बाद में ये बैन अवी सतह पर मुसलमानों की तरफ से जाहिर हो एक उम्मत के तौर पर। क्योंकि उम्मत कैसे बनती है? एक एक इकाई बन के ही तो एक जस्ते वाहिद बनता है ना। यानी हर कोई जब तकवा ऑब्जर्व करे ऑन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, तो फिर वो उम्मत के जो इज्तिमाई मिजाज है, इज्तिमाई इज्तिमाई रवैया है, उसमें जाहिर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो घर पर तकवा प्रैक्टिस नहीं कर सकता रहमी रिश्तों के अंदर, वो बाहर क्या करेगा? और वैसे भी दुश्मन से मुआहदे की बात हो तो फिर यही वर्ल्ड व्यू काम आता है जो कि हमने बचपन से सीखा होता है, जिसकी प्रैक्टिस घर में करवाई गई होती है। और देखें कि इम्तिहान तो तकवा का वही होगा ना जहाँ पे आजमाइश आएगी। वैसे क्या तकवा की प्रैक्टिस? तो आजकल हम देखते हैं कि जंगों और मुआहदों का दौर चल रहा है। अमेरिका खुद जो है वो जंगें मुसल्लत करता है, फंसता है तो मुआहदे करता है, फिर खुद ही तोड़ता है। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को फिर वही तरीका इख्तियार करना चाहिए जो कि यहाँ पे सूरत तौबा हमें गाइड कर रही है, कि अगर दूसरा फरीक मुआहदा तोड़ने का मुर्तकिब हो रहा है और बार बार कर रहा है, और दुश्मनों की पीठ मुसलमानों के खिलाफ थपथपा रहा है, तो फिर मुआहदा खत्म करें और 4 महीने की मोहलत दें और उसके बाद ऐलान जंग होगा। मगर ऐसा करते नहीं है ना मुसलमान। क्यों? क्योंकि ये उम्मत वाहिदा है ही नहीं। ये एक बिखरा हुआ एक ग्रोह बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ना इनमें आपसी ताल्लुकात ठीक है, ना तकवा है, ना अल्लाह पे तवक्कुल है। उन्होंने मुआहदे तोड़ने वालों के ऊपर ही डिपेंड किया हुआ है, जिसका निकाब या असलियत अब सामने आ भी चुकी है। मगर अंदरूनी जो ज़ोफ़े ईमान की कैफियत है और जो मुनाफिकत है, वो मुसलमानों को अंदर से खोखला कर चुकी है। और ये दोनों वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने अभी रखी है, कि ज़ोफ़े ईमान और मुनाफिकत, जो कि आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। तो अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 5। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है। फैजन सलखल अशरुल हुरम, फिर जब गुजर जाएं हुर्मत वाले महीने, क्योंकि वो ऐलान हुआ था ना 4 महीने का, ठीक है। जब ये हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुसलमानों अब तुमने क्या करना है? फक्तुलुल मुशरिकीना, तो कत्ल करो मुशरिकों को, हैसु वजदतुमुहुम, जहां कहीं तुम उनको पाओ। वखुदूहुम, और पकड़ो उन्हें, वहसुरूहुम, और घेरो उन्हें, वक़अदू लहुम कुल्ला मरसद, और बैठ जाओ इनके लिए हर घात पर। इसमें कुछ अल्फाज हैं जो अंडरलाइन कर लीजिए। पहला देखिए इन सलह, ये हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आप कीजिए वहसुरूहुम और मरसद, और वक़ूदू को भी कर लीजिए। अब जो इसमें मफहूम है वो क्या है कि जब ये 4 महीने गुजर जाए तो मुसलमान, वो जो 4 महीने की मोहलत दी गई थी ना इनको, ये 4 महीने है, फसीरू फिल अर्द, फसीहू फिल अर्द, खूब आराम से चल फिर लो, इन 4 महीनों में तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब ये 4 महीने गुजर जाएं तो फिर उनका अंजाम, उनके साथ क्या सलूक करना है, ये आयत बता रही है। बहुत सख्त आयत है वैसे। इन सलखा का मतलब होता है खाल उतारना। ये हमने सूरत अल अराफ में भी पढ़ा था। जैसे कि वहां पे मिसाल दी गई थी कि
जानवर की खाल उतर जाए तो खाल अलग हो जाती है, जैसे जानवर की खाल खींची जाती है ना तो खाल अलग हो जाती है, जानवर अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सांप जो है वो अपनी केचुरी उतार के वो जो उसकी खाल सी होती है वो साइड पे हो जाती है, वो खुद साइड पे निकल जाता है। मुराद ये होगा कि जब हुर्मत वाले महीने बिल्कुल गुजर जाएं, यानी मोहलत का वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। एक और सवाल यहाँ पे पैदा होगा कि हुर्मत वाले महीनों से क्या मुराद है यहाँ पे, क्योंकि इस्लाम में हुर्मत के महीने ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, और वो कौन से हैं? जिकादा, जुलहज, मुहर्रम और रजब। लेकिन यहाँ पे कौन से हुर्मत के महीने मुराद हैं? यहाँ पे ये वो वाले महीने मुराद नहीं है अशरुल हुरम, जिनका ताल्लुक हज और उम्रे के लिए यानी हुर्मत थी जिनकी, बल्कि ये वो 4 महीने हैं जिनकी मुशरिकीन को मोहलत दी गई है। क्योंकि इस मोहलत के जमाने में मुसलमानों के लिए ये जायज नहीं है कि वो मुशरिकीन पर हमलावर हों, इसलिए उन्हें हुर्मत के महीने या हराम महीने कमाया गया था, बताया गया। और इसकी मुद्दत जो है ना वो क्योंकि यौमुन नहर 10 जुलहज को ऐलान हो रहा है, 10 रबीउल सानी को खत्म हो रही है, तो ये 4 महीने हैं। आगे जो लफ्ज है वो है वहसुरूहुम। ये हास और रा से है, इसका मतलब होता है किसी को रोकना, तंगी में डालना, चारों तरफ रुकावटें लगाकर मुहासरा कर लेना। मुराद ये है कि जब 4 महीने गुजर जाएं तो इनकी नक्लो हरकत को महदूद करो, इनका मुहासरा करो। मुहासरा का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं इस बात को। आगे जो लफ्ज है मरसद, मरसद का मतलब होता है किसी की आमद का चुप कर इंतजार करना या निगरानी करना। मुराद क्या होगी कि दुश्मनों के लिए चौकियां बनाना, चेक पोस्टें बनाना। क्यों? निगरानी के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए। जैसे शहर में कोई अजनबी दाखिल हो तो चौकी पर जांच पड़ताल होती है शिनाख्त के बारे में, और मशकूक पाकर पकड़ लिया जाता है। बीच में एक लफ्ज मैंने आपको एक और लिखवाया था, वक़उदू। वक़उदू का मतलब होता है बैठ जाओ, काफ आइन दा, दाल इसका रूट है। लेकिन ये वैसे आम बैठना नहीं है, ये होता है कि पूरे एहतमाम के साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए बैठना। तो वो वाला बैठना यहाँ पे मुराद है। तो अगर हम इन सारे अल्फाज को देखें तो क्या तस्वीर निकलती है कि इनका इन्हीं के इलाके में रहना मुश्किल बना दिया जाएगा, कि इनको एहसास हो कि उन्होंने किया क्या है। और ये एक बहुत जारिहाना हिकमत अमली है, क्योंकि प्यार से तो बहुत ज्यादा समझाया जा चुका है इनको पहले ही। तो इसके बाद मुसलमानों को हुक्म हुआ कि ये मोहलत मुद्दत गुजर जाए तो उनको कत्ल किया जाए, जहां पे भी ये मिले इनको पकड़ कर कैद करो। और अगर वो कहीं अपने आप को बचाने के लिए महसूर हो जाए तो उनका मुहासरा भी करो, ताकि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक मजबूर होकर या तो जंग करें और या मुसलमान हो जाएं। और इनके लिए घात लगा कर बैठो, जिस तरफ से आए उनको गिरफ्तार करो ताकि ये मक्के में दाखिल ना होने पाए और ना ही फितने फैलाए। यानी दो ही रास्ते हैं इनके पास, तलवार या इस्लाम। और ये एक्शन ना अचानक है ना गैर मुनसिफाना, बल्कि अल्लाह ताला की सुन्नत अज़ाब के ऐन मुताबिक है, कि अल्लाह ने खुद इन्हीं में से एक रसूल भेजा। इन्हीं की वो अरबों में से थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की जुबान में कुरान नाजिल हुआ। और 12+ ईयर्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे। और जो कुरान का एक बड़ा हिस्सा है वो मक्की मक्की कुरान ही है, जो जो मक्का में नाजिल हुआ, वो इनको समझाने के लिए था और प्यार से ही समझाया गया इनको। इतमाम हुज्जत इनके ऊपर कर दी गई। तो आप इमेजिन करें कि ये सारी सिचुएशन हुई है और उसके बाद फिर आज ये फैसला है। तो मजमे आम में ये आयत पढ़कर सुनाई जा रही हैं, जहां मोमिन मुशरिक सब मौजूद हैं। तो किस कदर रुसवाई है मुशरिकीन की इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना अब हम ये देखते हैं कि अ, एक तो ये एक एक लेसन हम यहाँ पे के से क्या ड्रॉ कर सकते हैं अब तक, कि जब बैनुल अक़वामी सिफारतकारी, या जिसे हम कहते हैं ना डिप्लोमेटिक चैनल्स, अगर उनका इस्तेमाल हो रहा है, यानी डिप्लोमेसी चल रही है किसी मामले को लेकर, और अगर एक फरीक इस मौके को जाया कर देता है तो फिर ताकत का इस्तेमाल ही अमन कायम करने के लिए आखिरी ऑप्शन बचता है। फिर इतनी सख्ती के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब आगे देखिए आयत का अगला हिस्सा, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम। फिर अगर वो तौबा कर लें और वो कायम करें नमाज और वो अदा करें ज़कात, तो उनका रास्ता छोड़ दो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। यानी इतनी सख्ती के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर फिर भी वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, तो फिर मुसलमानों ने इनके ऊपर तलवार नहीं उठानी। तो तौबा की दावत तो पीछे आयत नंबर 3 में भी दी गई थी। लेकिन इन हालात में ये भी हो सकता है कि तौबा को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए जान बचाने के लिए। तो फिर उसके लिए तौबा का अमाल में झलकना भी जरूरी है। और वो अमाल कौन से होंगे? वो अमाल होंगे कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यानी तब जाके यकीन किया जाएगा, इसके बगैर नहीं माना जाएगा कि तुमने कुफर छोड़कर इस्लाम को इख्तियार कर लिया। इसी आयत से
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फितने इर्तदाद के ज़माने में इस्तेदलाल किया था। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब का बहुत ज़्यादा हिस्सा मुर्तद हो गया था। उनमें से एक ग्रोह ऐसा था जो कहते थे कि हम इस्लाम के मुनकर नहीं हैं, यानी हम इस्लाम से इनकार नहीं करते, और हम नमाज भी पढ़ते हैं और हम नमाज पढ़ने को तैयार भी हैं आगे भी, लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे। तो अब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ ऐलान जंग किया, तो सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद को ये परेशानी लाहक हुई कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे जंग की जा सकती है जो जो मतलब यूं अपनी जुबान पे कहेंगे जो कलिमा गो हैं और जो नमाज का एहतमाम भी करते हैं। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रजी अल्लाह अन्हु ने इसी आयत का हवाला देकर फरमाया कि हमें तो इन लोगों को छोड़ देने का हुक्म सिर्फ इस सूरत में दिया गया है जब ये शिर्क से तौबा करें, नंबर वन, नमाज कायम करें और ज़कात दें। जब ये तीनों शराइत में से किसी एक के ऊपर भी अमल नहीं करेंगे तो फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसी वजह से फिर उनके खिलाफ जंग हुई थी, और फिर यह है कि वो लोग आमादा हो गए थे ज़कात अदा करने के लिए। सो एक चीज तो यहाँ पे ये बता दी गई। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ तक हमें ना मुशरिकीन के दो ग्रोह नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? एक ग्रोह वो था जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक वाला ग्रोह, जिनसे ऐलान बरात कर दिया गया, मुआहदे सारे खत्म कर दिए गए और सख्त अहकामात उनको दिए गए। दूसरा ग्रोह है आयत नंबर 4 वाला ग्रोह। ये जो आयत नंबर 4 अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ी, ये कौन लोग हैं? ये हैं तो ये भी मुशरिक लोग, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने भी तुम्हारे साथ मुआहदे जब किए तो उन्होंने अपने मुआहदे पूरे किए और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी दुश्मन का साथ नहीं दिया मुसलमान। ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। अब आई है आयत नंबर 5, जिसको अभी हमने पढ़ा। ये आयत नंबर 5 वाली सजा कौन से ग्रोह के लिए? ये है पहले ग्रोह के लिए, जो आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक का था कि या तो मर जाएंगे या मुसलमान होंगे, यही दो ऑप्शन है। मगर आयत नंबर 4 वाले, सवाल तो यह है कि फिर इनका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि इनके साथ तो इंसाफ से मुसलमानों ने मुआहदा पूरा करना है जब तक कि मयाद को पहुंच जाए, लेकिन मयाद तो पहुंचेगी ना, तो फिर क्या होगा? एक बात तो यह है कि मुआहदा रिन्यू नहीं होगा बल्कि खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनको भी फैसला करना है अपने फ्यूचर के बारे में, और इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो मुसलमान हो जाओ या फिर अरब छोड़ दो, इसलिए कि जंग तो इनसे नहीं करनी, ठीक है, जंग वाला ऑप्शन इनके लिए नहीं है। तो फिर ये अब ये आयात में जाहिर नहीं है कि अरब छोड़ दो, लेकिन बिटवीन द लाइन ये ऑप्शन बचता है, क्योंकि इस इलाके से शिर्क ने तो अब मिटना ही मिटना है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ जो अभी इन लोगों को हासिल है ये आर्जी है। असल तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक उस वक्त हासिल होंगे जब ये उम्मत का हिस्सा बनकर रहेंगे। और वो उम्मत का हिस्सा कब बनेंगे? वही वाली शराइत जो यहाँ पे बताएगी कि ये शिर्क से भी बाहर निकल के मुसलमान होंगे, उसके बाद अपने अमाल में यानी नमाज का भी एहतमाम और ज़कात का भी एहतमाम करेंगे, तब जाके होगा। सूरत अनफाल से अगर हम थोड़ी सी इसकी डेवलपमेंट चेक करें, तो अनफाल की जो आयत हैं 2 से 4, जो कि लास्ट टाइम डिस्कस भी हुई थी, मैंने आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी की थी, कि वहां पे मोमिनीन हक्का यानी जो सच्चे मोमिन हैं उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई थी, डेफिनेशन दी गई थी। वो क्या थी? कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल कांप उठते हैं। जब तिलावत की जाती है आयत की तो इनका ईमान बढ़ जाता है, ये अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, ये नमाज कायम करते हैं और ये जक़ात देते हैं। कौन से सिमिलर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको नमाज और जक़ात पर? अब देखिए, ये हमने अनफाल में पढ़ा था ना। तो तौबा की आयत नंबर 5 में भी इस्लाम में दाखिल होने की कम से कम 3 अलामात बताई गई हैं, और वो क्या है कि तौबा करो, नमाज कायम करो और जक़ात दो। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जिस उम्मत की सिफात इनफाल में बयान हुई है, अब इस उम्मत में दाखिल होने के दरवाजे भी यही हैं। तो इनफाल जो है, सूरत इनफाल मोमिन की अंदरूनी कैफियत बताती है, और तौबा उसकी ज़ाहिरी शनाख्त बताती है। तो इनफाल में मुसलमान अपनी शनाख्त की फिक्र में थे, और तौबा में अरब की शनाख्त की बात अब सामने आने लगी है। आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ, आयत नंबर 6। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फआजिरहु, इस लफ्ज को अंडरलाइन कर लीजिए, इस्तजारका। और अगर कोई एक मुशरिकीन में से आपसे पनाह मांगे, फाजिर हूं तो उसे पनाह दीजिए, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाही, यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले। सुम्मा फिर, अबलिगहु मा मा मना, फिर इसको पहुंचा दीजिए इसके अमन की जगह पर। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, मा मना। ये मामन, उर्दू में इसको हम मामन कहते हैं, मामन, अमन की जगह, ठीक है।
ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک حیران کون آیت ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے کہ جہاں آیت نمبر 5 میں شدید سختی کی بات ہے، وہاں پہ آیت نمبر 6 میں پناہ، حفاظت اور امن کے ساتھ واپسی ہے۔ تو اگر صرف مقصد یہی ہوتا کہ مشرکین کا خاتمہ کیا جائے تو پھر آیت نمبر 6 کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، نہیں رہنی تھی۔ تو یہ آیت بھی ایک مہلت ہی کی طرح ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عرب کے علاقے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کلام اللہ نہیں سنا، اللہ کا کلام نہیں سنا، حالانکہ 21 سال گزر چکے ہیں، کہیں جنگیں بھی ہو چکی ہیں، مگر اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ خیر، اب ہوا کیا کہ اتنا بڑا الٹیمیٹم اب آ گیا، اتنا بڑا اعلان ہو گیا، 4 مہینے کی مہلت دے دی، تو ان لوگوں نے پھر سوچا ہوگا کہ یار ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ہمارے قتل کے احکامات ہی جاری ہو گئے، محاصرے کے احکامات جاری ہو گئے، تو پھر سنا تو جائے کہ اسلام کی دعوت ہے کیا۔ تو اسی حوالے سے پھر حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے پناہ طلب کرے تو نہ صرف یہ کہ پناہ دو، بلکہ اس کو دین کا پیغام بھی دو، سنواؤ اس کو۔ پھر اس کو فوری طور پر فیصلہ کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اس کے گھر بحفاظت پہنچاؤ جہاں وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، مگر اس کے بعد فیصلہ اس کو کرنا ہی ہوگا، دو میں سے ایک آپشن لینی ہوگی، اور باقی یہ ہے کہ اس کا مکہ میں سروائیول اس کے اپنے ہی فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قتال کا حکم اندھی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اسلام کو سمجھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا گیا ابھی بھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایک لفظ انڈر لائن کیجئے، استجارہ کا۔ یہ جو لفظ ہے یہ جارہ سے ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، لیکن یہ جو لفظ ہے نا یہ ایک الگ فیملی سے ہے، یہ استجارہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فیملی اب میں آپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ وہ گرامر والی ڈسکشن ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، استجارہ کا مطلب آپ نوٹ کر لیجئے کہ کسی کو اپنا پڑوسی بنانے کی ریکویسٹ کرنا۔ اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے جوار، جیم واو الف را، جوار۔ جوار ایک قدیم عرب ٹریڈیشن تھی، زمانے جاہلیت سے چلتی آ رہی تھی، جس میں کمزور لوگ طاقتور لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے اگر انہیں کسی سے اپنے جان و مال کے لوٹنے کا اندیشہ ہوتا تھا، تو جو کوئی پناہ دیتا تھا پھر وہ جان پر کھیل کر اس شخص کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور یہ عرب ٹریڈیشن تھی اور بہت اچھی ٹریڈیشن تھی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ طلب کرنی پڑی تھی، کیونکہ اب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابو لہب نے بنو ہاشم کا سردار بنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو مباح قرار دے دیا تھا کہ کوئی بھی ان کو مار سکتا ہے، معاذ اللہ۔ بہت ہی دل خراش ویسے واقعہ ہے، بہرحال یہ عرب کی ٹریڈیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے جوار میں آتا ہے، آئی ہوپ آپ جوار سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اسی عرب کلچر کے مطابق مسلمان نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک اور حیران کن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے، بلکہ کیا کہا ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، سمجھ لے، غور کر لے۔ یعنی قرآن چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کا کلام سن کر خود فیصلہ کریں، اور جب قرآن سن لے تو پھر کیا؟ یہ حصہ اور بھی حیران کن ہے کہ اب اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچاؤ جہاں وہ اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہو۔ یعنی اگر سن کر قبول نہیں بھی کرتا تو بھی اس لیے کہ تم اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، 4 ماہ کی مہلت والا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے ابھی تک، تو زبردستی اسلام کسی کو بھی مسلمان نہیں کرتا۔ وہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اسلام کا مطلوب صرف زبان کا اقرار نہیں ہے، بلکہ شعوری قبولیت ہے، جو انسان پورے ہوش و حواس سے فیصلہ کر کے اپنے رب کے پاس آئے، اس کے بعد سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں دیکھیں کیا ارشاد فرمایا ہے، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ بوجہ اس لیے، یعنی یہ کیوں یہ آپشن رکھا جا رہا ہے، یہ والی بات، یہ اب بھی یہ آپشن دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو علم نہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس انفارمیشن کی یا معلومات کی کمی ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے جو قرآن اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، یہ ستاروں کے پیچھے چلتے تھے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے، یہ بات سننے کو تیار نہیں تھے، یہ غور و فکر کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ بھی تھا کہ انہوں نے خود کبھی حق تک پہنچنے کی سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ شاید شکست اور بحران بعض اوقات انسان کے تکبر، ضد اور تعصب کے پردے چاک کر دیتا ہے، پھر وہ حقیقی دنیا کو دیکھتا ہے اور اپنا جائزہ لیتا ہے۔ اس لیے ان کو اب قرآن سننے کا موقع دیا جا رہا ہے۔
देखिए, सुनना सिर्फ कान का अमल नहीं है। इस तरह तो ये पहले भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मुबारक से कुरान सुनते ही होंगे, मगर असल सुनना दिल का अमल होता है। जैसे कुरान कहता है ना, लहुम कुलूबुल ला यफकहूना बिहा, उनके पास दिल है मगर वो उससे सुनते नहीं है, सॉरी समझते नहीं है। तो समझना सुन सुन के ही पहली स्टेज तो समझने की, सुनने पे ही आती है ना। तो गोया आप इल्म हासिल करने का एक और मौका फिर से दिया जा रहा है, और ये अल्लाह ताला की रहमत की झलक है, रहमान की रहमत की झलक, कि इतने बरसों की मुखालिफत, जंगों और ऐत शुकनियों के बाद भी हदायत का मौका फिर से दिया जा रहा है। तो इस डिस्कशन से क्या ये सवाल मेरे और आपके लिए खड़ा नहीं होता कि मैं किस तरह कुरान सुनती हूँ? क्या इसका सुनना मेरे लिए बायसे हदायत है, या बस सुनने का एक रिचुअल है जो प्ले हो रहा है? क्या इसको सुनकर मेरी जिद, मेरी तासुब, मेरे तकब्बुर के पर्दे गिरते हैं, या थोड़ी देर हिलकर वापस अपनी जगह पर जम जाते हैं? और दूसरी अहम बात यह है कि जो जो मोहलत से जुड़ती है, कि अभी तक अगर मैंने और आपने कुरान नहीं सुना ऐसे जैसे सुनने का हक था, ये बात नहीं कि सिर्फ वो मतलब एक खूबसूरत रेसिटेशन हमने सुन ली, खूबसूरत कलाम की तरह, बल्कि पैगाम, पैगाम भी। तो ऐसा ना हो कि मोहलत जिंदगी खत्म हो जाए और अल्लाह हमसे पूछे कि तुम तो मुसलमान थे, तुम्हें क्या चीज माने हुई कि तुमने मेरा कलाम सुनना जरूरी नहीं समझा? तो एक हिला देने वाली आयत आपको याद है कि हमने सूरह हदीद में पढ़ी थी, कि अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ला मिनल हक़। क्या अभी तक ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के सामने और जो कुछ हक में से नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाए? ये सवाल है ना, कि हमारे लिए अभी तक वो वक्त नहीं आया, कब आएगा वो वक्त? अच्छा, एक और पॉइंट सीखने सिखाने के हवाले से एक बड़ा ही खूबसूरत उसूल हमें यहाँ पे मिल रहा है, कि माहौल दोस्ताना होना चाहिए। इसको कहते हैं वो, आप जाए ना स्कूलों के अंदर तो वहां पे ना एक वो मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, उस पे लिखा होता है, वी प्रोवाइड कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो सकता है? कि इस तरह का माहौल, लर्निंग इन्वायरमेंट या सीखने का माहौल बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है जो उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, फोस्टर करता है, बढ़ाता है। जैसे कि तालिब इल्म को कोई खौफ का माहौल ना दिया जाए, उस्ताद कोई जालिम और जाबिर इंसान ना हो, सिक्योरिटी का इंतजाम हो, गर्मी सर्दी का ख्याल रखा जाए, साफ पानी, खाना, वॉशरूम वगैरह की सहूलियात मुयसर हो। यानी माहौल क्या हो? मामन, मैंने आपको कहा था ना, मामना, अमन की जगह, ऐसा माहौल हो। तो फिर यह है कि दर्स का अमल शुरू किया जाए। एक और अहम पॉइंट जो कि इस आयत में से निकलता है हमारी रहनुमाई के लिए, खास तौर पर वालिदैन और टीचर्स की रहनुमाई के लिए, ये कोई भी बॉस हो सकता है या कोई मैनेजर हो सकता है जो कि उन लोगों को डील करता है जो इसके सबॉर्डिनेट्स हैं, कि हर एम्प्लॉय, हर शागिर्द, सारी औलाद एक जैसी नहीं होती। यानी जो ऊपर हमने बातें पढ़ी ना, कि तासुब, जिद, हट दर्मी भी फैक्टर्स हैं जो सीखने की राह में रुकावट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स की मिसाल चले ले लें, या कुछ जो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो ऐसे कोई गफलत में जिंदगी गुजारते हैं कि सारा साल डंडे बजाए, जब इम्तिहान का वक्त आया या ऑफिस का माहौल है तो ऑडिट का वक्त आया तो संजीदा हो गए, अब क्या करना है, अब हाथ पांव पड़ चुके हैं। तो अब मेंटोर्स क्या करें, अब वालिदैन क्या करें, अब टीचर्स क्या करें? तो अब, क्योंकि अब ये नहीं कहेंगे नहीं जी अब तो सीखने का वक्त गुजर गया, ये आयत हमें बताती है कि नहीं, अब भी रहनुमाई करनी है। और रहनुमाई करो जितनी मुमकिन हो सके, अच्छे माहौल के अंदर रहते हुए, ना साथ साथ ताने मत दो, कि जो जो होता है ना, कि अच्छा पूरे साल तो कुछ किया नहीं तो अब आ गए हो पढ़ने के लिए, अब क्या करोगे? तो सूरत के कॉन्टेक्स्ट में एक और अहम नोट करने वाली बात है कि इखलाकी बर्तरी असल में प्रोपेगेंडे को तोड़ देती है। जरा तसव्वुर करें, एक मुशरिक शख्स जब मुसलमानों के पास पनाह के लिए आया होगा तो उसके जहन में मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडास भरे हुए होंगे, क्योंकि आयत भी उतर चुकी हैं अब तो, कि ये जालिम लोग हैं, हमारी जान ले लेंगे। लेकिन जब मुस्लिम रियासत उसे पनाह देती है, कलाम इलाही सुनने का मौका देती है, और इस्लाम ना कबूल करने पर भी कोई आंच नहीं आने देती, बल्कि पूरी हिफाजत और प्रोटोकॉल के साथ उसको उसकी अमन की जगह पर पहुंचाती है, तो ये अमल उस मुशरिक के दिल पर ऐसा गहरा इखलाकी नक्श छोड़ता है कि वो इस्लाम के बारे में अपनी संजीदगी से अपनी सोच बदलने के बारे में और गौर फिक्र करता है। यानी किरदार जो है ना, वो अल्फाज से ज्यादा ऊंचा बोलता है। कहते हैं ना, वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं जी, आयत नंबर 7, और ये हमारे सेशन की लास्ट आया है। कैफ यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंदा रसूली। किस तरह हो सकता है, कैफा को अंडरलाइन कीजिए, किस तरह हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह के नजदीक और इसके रसूल के नजदीक, इल्ला सिवाय, अल्लाजीना इनके जिनके,
आहद तुम इंदल मस्जिद हराम, सवाए उन लोगों के जिनके साथ तुमने मस्जिद हराम के करीब मुआहिदा किया। ठीक है, यानी मुशरिकों का अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुशरिकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई अहद कैसे हो सकता है सिवाय उन लोगों के, एक्सेप्शन क्रिएट कर दी है, जिनके साथ तुमने मस्जिद हराम के साथ मुआहिदा किया। तो वो कौन लोग हैं और वो क्या मुआहिदा था वो देखेंगे हम। फमस्तकामु लकुम, फिर जब तक वो सीधे खड़े रहे तुम्हारे लिए, फस्तकीमु लहुम, तो तुम भी सीधे खड़े रहो उनके लिए। इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तकवा वालों को या मुत्तकियों को पसंद करता है। अगेन मुत्तकियों वाली बात यहाँ पर आ रही है। सो इसमें पहली चीज तो हम ये नोट करेंगे कि कैफा का मतलब क्या है। कैफा का एक मतलब होता है कैसे, एक मतलब होता है किस तरह, और एक होता है कौन सी हालत। यहाँ पे कैफा का इस्तेमाल किसी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इजहार ताज्जुब के लिए है, इनकार के लिए है, और किसी चीज को नामुमकिन करार देने के माना के लिए है। जैसे वो, जैसे हम कहें कि किसी बच्ची के बारे में कि उस पता चले उसने बीए कर लिया ना, तो बंदा कहे कि वो तो कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, वो बीए कैसे कर सकती है। ठीक है, तो ये है कि किसी चीज को नामुमकिन करार देना। मुराद ये है कि आखिर कैसे मुमकिन है कि इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ कोई अहद बाकी रहे। सवालिया अंदाज इख्तियार किया गया है ना, और क्यों इख्तियार किया गया है कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो कि आखिर क्यों नहीं हो सकता, और आगे फिर वजूहात भी आएगी। फिर यह है कि मस्जिद हराम का खास जिक्र है, इसलिए कि ज़माने जहलियत में भी हरम के पास किए गए मुआहिदात को दोनों जो भी फरीक उसमें इन्वॉल्व होते थे उसको बहुत संजीदगी से लिया जाता था। तो ये किस मुआहदे का जिक्र है जो मस्जिद हराम के करीब हुआ, तो मुफस्सिरीन का इजमा है इस बात के ऊपर कि ये हुदैबिया का मुआहदा है, जिसको हम सुलह हुदैबिया कहते हैं। तो सुलह हुदैबिया चूंकि 6 हिजरी में हो चुकी थी, लेकिन इस मुआहदे को खुद कुरैश के एक हनीफ कबीले के कबीला था वो बनु बकर, उन्होंने मुसलमानों के हलीफ कबीले के खिलाफ जंग मुसल्लत करके उसको तोड़ दिया था। सुलह हुदैबिया की शराइत पे कुछ इंट्रो में बात हुई थी, मैं दोबारा से दो का हवाला दे देती हूँ यहाँ पर। एक उसकी शिक ये थी कि दोनों फरीक में 10 साल के लिए जंग बंदी रहेगी, और दूसरा था कि इस दौरान अगर कोई कबीला कुरैश के साथ मिलना चाहे तो वो आज़ाद है, और अगर कोई कबीला मुसलमानों के साथ शामिल होना चाहे तो वो भी आज़ाद है। अब हुआ क्या कि इनमें से दो मुशरिक कबाइल में से एक बनु बकर था, और जो इस मुआहदे के बाद कुरैश का हलीफ बन गया, और एक बनु खुजा थे जो कि मुशरिक कबीला था वो भी, लेकिन ये मुसलमानों का हलीफ बन गया। आपस में जबकि इन दोनों कबाइल के अंदर पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी। हुआ क्या कि सुलह हुदैबिया के तकरीबन 1.5 साल के बाद एक रात बनु बकर ने बनु खुजा पर हमला कर दिया, यानी कुरैश के हलीफ कबीले ने मुसलमानों के हलीफ कबीले पे हमला कर दिया। शिक क्या थी पहली, 10 साल के लिए जंगबंदी रहेगी। तो इनका काफी जानी और माली नुकसान हुआ। बनु खुजा जो है वो मतलब काफी लोग मारे गए उनके। कुरैश ने छुप कर बनु बकर की मदद की, हथियार वगैरह प्रोवाइड किए, यानी उनकी मर्जी शामिल थी। अब हुआ क्या कि सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा है वो कुरैश ने तोड़ दिया खुद ही, टूट तो गया ना। तो कबीला बनु खुजा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला दी, और कुरैश की जो अहद शिकनी है वो क्योंकि ऐलान जंग बन गई एक तरह से। ताहम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सामने अभी भी 3 शर्तें पेश की कि इनमें से कोई भी एक कबूल कर ली जाए, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्टोरेंट का सबूत दिया अभी भी। उसमें एक शर्त यह थी कि बनु खुजा के मकतूलीन का खून बहा अदा किया जाए। दूसरी थी कि कुरैश बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं, और तीसरी थी कि ऐलान किया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा खत्म हो गया है, आप ऐलान करते। कुरैश ये शराइत सुन के भड़क उठे और बोले सिर्फ आखिरी शर्त पर जोर है। कौन सी? हुदैबिया का मुआहदा खत्म। अब वो कहते हैं कि वो बड़बोले से हुए और जोश में आके जब उन्होंने ऐलान तो कर दिया और कासिम वापस चला गया ऐलान सुन के, तब इनको होश आया। अब फिर अबू सुफियान को मक्का भेजा कि मुआहदे की तजदीद की जाए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुआहदे की तजदीद नहीं की थी। तो कुछ मुसलमानों का यह ख्याल भी था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो है वो कुरैश का सरदार आया है, तो सुलह बेहतर है। लेकिन जब चूंकि अब मुआहदा टूट चुका था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जंग की तैयारी का हुक्म दिया, मगर सरहद से ये वाज़ेह नहीं किया कि कहाँ का इरादा है। तो हुआ कौन सी जंग हुई थी? फिर इसके बाद जंग तो नहीं हुई, लेकिन फतेह मक्का हो गया था, तो उसका रास्ता फिर हमवार हो गया था। तो इनके जो है ना यानी वो कहते हैं कि अपनी ही वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों के साथ तो मुआहदा बरकरार रहेगा जिनके साथ तुमने यानी हुदैबिया की है। ठीक है, और वो किसके? मस्जिद हराम के करीब। लेकिन कुरैश ने तो मुआहदा तोड़ दिया था, तो इनसे तो मुआहदा खत्म हो गया ना। लेकिन अब ये कौन है जिनकी एक्सेप्शन आ रही है? कुछ कबाइल ऐसे थे जो कि इस मुआहदे में शामिल थे, जैसे कि बनु खुजा थे, बनु जमरा थे, बनु मदलज थे,
اور انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے ان کی معاہدے کی میعاد تک پورا کیا جائے گا کام، یعنی میعاد پوری کی جائے گی معاہدے کی، لیکن اس کے بعد وہ رینیو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ جو بات کی نا کہ جب تک وہ کھڑے، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ سیدھے کھڑے رہے تو تم بھی کھڑے رہو، یعنی جب تک مطلب یہ ہے کہ وہ عہد نبھائیں تم بھی ان کے ساتھ عہد نبھاؤ، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آیت 4 کی طرح عہد کی پاسداری کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ مشرکین سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدہ کیے، تو اس اعلان برات کے ہونے میں بھی آپ دیکھیں کہ قریش کا اپنا ہاتھ ہے، کیونکہ حدیبیہ انہوں نے خود توڑی تھی۔ یہاں سے ہم کیا لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں کہ اسلام میں جیو پالیٹکس کا اصل اصول یہ ہے کہ آپ کسی کے عقیدے کی بنیاد پر اس سے معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ اگر وہ اچھے شہری یا اچھے پڑوسی بن کر سیدھے چل رہے ہیں تو مسلم ریاست کا قانونی اور اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ سیدھی کھڑی رہے۔ تقویٰ کا ایک نیا رخ نظر آ رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ اگر کوئی ڈیل مسلمانوں نے کی ہے تو وہ اس کو ایمانداری سے نبھائیں گے اور یہی تقویٰ ہوگا۔ اگر کوئی دیکھیں شخص ہے بہت عبادت گزار ہے لیکن سیاسی یا تجارتی معاہدہ کر کے اس میں ڈنڈی مارتا ہے، یا دوسرے فریق کو کافر سمجھ کر یا کافر دیکھ کر اس کا، یا غیر مسلم دیکھ کر یوں کہہ دیا جائے، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور مکر جاتا ہے معاہدے سے، تو پھر اللہ کے نزدیک وہ متقی نہیں ہے۔ یہ حرکتیں تو یہودی کیا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں امیوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی جواب داری نہیں ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق کیا تھا کہ غیر یہودیوں کے ساتھ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کر دی جائے، ان کو اللہ کے سامنے جواب داری نہیں کرنی ہوگی اس کے لیے، جبکہ یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان اپنے دین کا ایک اچھا ایمبیسڈر کیسے بنتا ہے اس آیت کی روح سے؟ کیسے کہ اپنی کمٹمنٹ کو نبھا کر، اپنی زبان پر قائم رہ کر، یہی ایک مسلمان کی انفرادی سطح پر اور پھر بین الاقوامی سطح پر امت کی ریپوٹیشن کی وہ ہوگی، ریپریزنٹیشن ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک دعا ہے، یہ ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5، وہ دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا جو کافر ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یا اللہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ ہمارے کردار کو، ہمارے ہمارے کریکٹر کو دیکھ کے کافر یہ سوچیں کہ شکر ہے ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان ہونا ہوتا ہے تو اچھا ہے ہم کافر، تو یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا۔ تو ایک سبق اور کہ اسلام میں اجتماعی سزا کا قانون نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، ایک محاورہ ہے نا، کہ اگر چھوٹے قبائل نے معاہدے نہیں توڑے تو اسلام ان کو تحفظ دے رہا ہے۔ استقام منہ کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں کھڑے رہیں، یہ دین ہے جو سیدھا ہے، دین القیم، سیدھا دین ہے یہ، اور جو ٹیڑھا ہوتا ہے وہ نفاق ہوتا ہے، وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ پھر سیدھا رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اگین وہی تقویٰ کا جو اسکوپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور وسیع کیا ہے یہاں پہ آ کے۔ تو یہیں تک ہمارا لیسن تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔